For over 200 years, Gorkhas from Nepal have fought India's wars. But one policy, launched in 2022, is now making Gorkhas here in Nepal do a rethink. Agnipath recruits youth for just 4 years. Only a quarter are kept on. The rest go home with no pension and no security. Hello and welcome to The Print. I am Devdatta here in Pokhara in Nepal, and I have come to talk to a few trainees of the Nepal Army who train themselves to go to the Indian Army, the Nepal Army, or the British Army as part of the Gorkha Rifles. Now, since the Indian government has brought out the Agniveer scheme, which ensures that the soldiers can only be part of the army for a time period of 4 years. Recruitments from Nepal have stopped for the Indian Army since the government has not agreed to this scheme. We are here in one of the training centers in Pokhara to understand how the youth of Nepal, who once had dreams of joining the Indian Army, now look at the scheme and how their aspirations have now shifted since the scheme has been enabled. हमने भी ये सोचा था इंडियन आर्मी के लिए ट्राई करने का। हमारा पापा भी इंडियन आर्मी है और वो पेंशन आके ठीक 10 साल हो गया है। 58 जीआर का है और हम भी चाहते थे पहले जैसा होता तो हम भी इंडियन आर्मी के लिए ट्राई करना चाहते थे, पर वैसा नहीं रहा, इसलिए हम इधर ही नेपाल में ही कुछ करना चाहते हैं। For 20-year-old Bivas Rana, training for the Indian Army was more than a career plan. It was a chance to follow his father's footsteps, to wear the uniform of the Gorkhas that have defined generations of Nepali men, and to secure a future of stability, honor, and a pension. But now his plans have changed. He has been training for the past 2 months at the Eminent Defense Academy in Pokhara and plans to join the Nepal Army soon. He does not want to be inducted in the Indian Army under the Agnipath scheme. जस्ट जैसे कि सर ने कहा था, दोनों दोनों सरकार बात करके और वो पहले जैसा ही करके इससे बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता था और हम लोग भी ट्राई कर सकते थे उसके लिए, और उसके हेल्प से बहुत अच्छा हो जाता हमारे लिए। तो अभी जब आप इंडियन आर्मी नहीं ज्वाइन कर रहे हो, हाँ, या आपका मतलब आपने चेंज कर लिया है, तो आपके एम्बिशंस पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ा है? अब आप आगे जाके क्या सोच रहे हो? इफेक्ट थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट, और हमने इसलिए नेपाल में ही कुछ करेंगे सोच के नेपाल आर्मी में ट्राई कर रहे हैं अब। Right now, 1,22,000 Nepali pensioners rely on India. An Indian soldier earns about 30,000 rupees in Indian rupees a year in pension. This is equal to a lieutenant colonel's pay in Nepal. Under Agnipath, future pensions vanish. Back in his training center in Pokhara, ex-Subedar Major Honorary Captain Ram Prasad Gurung ASM is a retired Indian Army officer of 5-4 Gorkha Rifles who now runs Pokhara's oldest training institutes. He says that this is not only about recruitment but also about legacy. ऐसे है जैसे हमारे इंडिया में क्या है, बहुत ये जो रेजिमेंट जो यूनिट है काफ़ी है। जो अभी वहाँ क्या है, हमारे जो इतिहास है वो अभी नहीं रहा। वो सुनने में आया, जैसे मैं वहाँ का जो भूपू साहब लोग से भी बातचीत करता हूँ, जैसे गोरखा यूनिट होता है, वो यूनिट अभी हमारे जो इतिहास है वो मिटाने वाले हैं। इसलिए कि जो अच्छा जो जो हमारे पुरखों ने जो नाम कमाया है वो नहीं है। हाँ, वो तो जैसे ऐसे है कि मान लो मैंने बताया सरकार से, भारत सरकार से जो निवेदन किया है कि जो पुराना सिस्टम जो 15 साल ही करने से अच्छा होना था। यदि अगर जो अपनी वीर है जैसे 4 साल नौकरी करना है तो वो भी ठीक है। अभी भी जो अभी नया जो अभी सरकार अंतरिम जो सरकार बन रहा है नेपाल में, भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि और भी जो उन्होंने जो लेटर देना चाहिए इस सरकार को, अंतरिम जो सरकार में जो अभी जो बना है नेपाल में, हमारे सरकार को और लेटर देना चाहिए, ताकि जो पहले भी सुना है
कि जो लड़का अगर यदि अग्निवीर में जो ज्वाइन हुआ, भर्ती हुआ, अगर यदि वो आना पड़ेगा तो सभी के लिए जो अब वहाँ से निकलना पड़ता है, जैसे अभी 75%, अब उसमें उनके लिए जैसे नौकरी का गारंटी सुना है कि अभी ठीक है, वो जो अब कैसे असम राइफल या बीएसएफ, सीआरपीएफ, डीएससी, आईटीबीपी जो भी जहाँ पर, या हिंदुस्तान लीवर या भारतीय रिजर्व बैंक जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उनके लिए कहीं भी जॉब मिले तो वैसे अच्छा है। वो अभी वैसे लेटर जो है जो भारत सरकार दे नेपाल सरकार को देने से हो सकता है अभी जो नया सरकार है उन्होंने शायद मान सकते हैं इस बात को। With Indian recruitment no longer a guarantee, many are turning to the Nepali or the British Army. Others leave for construction jobs in the Gulf or even fight in the Russia-Ukraine war. ऐसा है, पोखरा में ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 50 to 60 ट्रेनिंग सेंटर है। उसमें से हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ऑन एन एवरेज 3-4 साल पहले 700-800-900 लोग तो वर्ष में आ ही जाते थे, और ट्रेनिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट 4-5 महीना का होता था। और जब से इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट बंद हुआ है उससे बहुत उस संख्या में गिरावट आया है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे वो लोग ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादातर लोग शिफ्ट हो गए, और कुछ नेपाल आर्मी, और मैक्सिमम लोग तो बाहर जो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट है बाहर के कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और गल्फ कंट्री वगैरह, जिधर भी हो जा सकते हैं उधर शिफ्ट हो रहा है। सो ये भर्ती का प्रोसीड्यूर जब से रुका है उसमें ट्रेनिंग में भी गिरावट तो आया है। तो मेरा ड्रीम तो था इंडियन आर्मी पर भर्ती होकर उधर ही अपना ड्रीम पूरा करना चाहता था, लेकिन ये बीच में आएगा है ना ये अग्निवीर, उसे क्या करते हो 5 साल के लिए जाकर फिर नेपाली लौटना पड़ेगा ना, इसीलिए अग्निवीर हमारे लिए हम जैसा ये के अरे जवान के लिए चाहिँ अच्छे नहीं है। अब मुझे लगता है ये दोनों देश के सरकार बात करके ये पहला जैसा भर्ती प्रक्रिया है ना फिर से शुरू करना चाहिए। पहले के प्रक्रिया में भर्ती होकर जाके वो सालों सालों तक रिटायर, जब तक रिटायर नहीं होते उस तक अपना के अरे जवान अपना योगदान उधर पे दे सकता था, लेकिन अब तो 5 साल के लिए है ना जस्ट, इसीलिए नहीं जाना 5 साल के लिए। अब क्या करेगा, अब सालों मेहनत करेंगे भर्ती होने के, लेकिन जस्ट 5 साल के लिए जाकर फिर लौट के नेपाल आफ्नै देशमा आउनु पड़ेगा, इसलिए तो अच्छे नहीं है ना। But with the new government in Kathmandu, veterans hope the old system can return. मैं 530 सिंह बटालियन से संबंधित रखता हूँ। हाल में हमारे ये गंडकी प्रदेश सुंदर नगरी पोखरा कास्की बहुपक्षणी संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। मैं ये जो इंडियन भारत सरकार ने जो ये अग्निवीर लागू किया है उसके बारे में मेरा ये धारणा है कि सबसे पहले तो मतलब रेगुलर ही होना चाहिए, जिस प्रकार से पहला था वैसे ही होने से अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो भारत सरकार ने जैसे कि अग्निवीर में जैसे 25% को सेलेक्टेड करता है, 75% को मतलब घर भेज देता है, वो नहीं करना चाहिए, बल्कि 75% को सेलेक्टेड करना चाहिए, 25% को मतलब वहाँ से मतलब निकाल देना चाहिए। वो भी 25% को भी जैसे कि हमारा आर्मी के अलावा जैसे डीएससी है, बीएसएफ है, टीए बटालियन है, उसके अलावा जैसे खास का मतलब कोई बैंक है उसमें सिक्योरिटी गार्ड में मतलब भारत सरकार ने उसको वहीं पे सेटल कर देने से बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा तो मेन धारणा यही है। For Nepalis, fighting for India was always a matter of pride. But unless recruitment now restarts, the 40,000 who are still serving could be the last Gorkhas in Indian uniform. सोल्जर जब एक देश के लिए कुछ देना चाहते हैं अपने, कुछ एक्सपेक्टेशन उस देश से
उस नेशन से, उस सरकार से होती है। एंड व्हेन द थिंग्स वोंट वर्क आउट फ्रॉम दैट बोथ नेशंस, एंड एउटा कुछ बात प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पर इस कॉन्टेक्स्ट पे हम बात कर ही लिए तो नेपाल की तरफ से जो बटालियन जब ग्रुप जाते थे, जब गोरखा जाते थे, उन लोग खुद के देश से भी कुछ ज़्यादा कर लेते थे। तो आपको इंडिया की हिस्ट्री में देख ले तो बहुत नेपाली लोग चाहिँ उधर जाके चाहिँ हिस्ट्री क्रिएट किए हैं। सो इस बात से देखें तो इस बात से भी देखें और वाइड स्कोप के व्यू से भी देखें तो इट would let a very great relations with that neighboring nations, as Nepal is a very part of a very close and very very beautiful neighboring nation. And उधर की सरकार से भी कुछ पहल होना चाहिए। सो एंड इधर की तो सरकार को भी बात कर लेना चाहिए, बिकॉज इससे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, पर उससे भी बड़ा कुछ और बात भी है, क्योंकि जो इधर का डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, एंड समटाइम्स देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट बिटवीन दिस नेशंस, बट still they are a happy and friendly nations in the world, and they are known as, and we are known as also a Hindu country, and neighboring very good countries. So we are just a part of two part of a coin. So either we are hot or either the India is hot, the problem will be in both of us. So the countries, वो सरकार और हमारे सरकार के बाद बीच से कुछ वार्तालाप हो के कुछ अच्छा पॉलिसी आके चाहिँ उस केस के विकल्प को खोज के बेस्ट अल्टरनेटिव को लिया तो अच्छा होता है। This is Devlata for The Print. Keep watching for more.